Youth and old age both are important part and parcel of a human being's life. दोनों ही equally important हैं. If youth has vitality, old age has experience and seriousness, says Robert Browning in his poem Rabi Peninsula. जैसे youth important है, वैसे ही old age important है. And the poem which we are going to discuss today, Sailing to Byzantium by W.B. Yeats. He also expresses the thoughts of an old man, how he feels neglected in the life where he lives. The country where he lives, he feels neglected by the youth because they are busy in their sensual pleasures. So he wants to escape from that world to some other country to gain self-realization and to get solace and to become eternal. Let's see how he wants to become eternal and what are the steps he wants to take to be eternal. Hey there, I'm Jyoti Mishra. Welcome to 3E and let's read Sailing to Byzantium by W.B. Yeats today. Sailing to Byzantium by W.B. Yeats. It's a poem of 4 paragraphs in which the old man, the speaker of the poem, he just says that he faces the problem of old age, death, and of regeneration. And he decides to renounce the world. As old age excludes a man from the sensual joys of youth, and the world he sees around him is totally full of youth or young people, and he sees that he has no place in this world. So he decides to go somewhere else where he can find the solace of his mind. His heart finds serenity and he can feel relaxed out of the sensual world. So let's see how the poem moves on. That is no country for old men, the young in one another's arms, birds in the trees, those dying generations add their song. The salmon-falls, the mackerel crowded seas, fish, flesh or fowl, comment all summer long. Whatever is begotten, born and dies, caught in that sensual music all neglect, monuments of unageing intellect. That is no country. The very first line tells us or gives the structure to the whole poem. पूरी की पूरी पोम है, ये फर्स्ट लाइन से इंडिकेट कर देते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में आगे बात करने जा रहे हैं. एंड दैट इज़ नो कंट्री, दैट इज़, दिस इज़ रिप्लेस्ड बाय दैट. It indicates that if this is not the country for old men, क्योंकि जैसे ये कंट्री यंग मैन की है तो वैसे ही कोई ना कोई दूसरी कंट्री, कोई ना कोई जगह है जो ओल्ड मैन के लिए भी होगी. क्योंकि यहाँ जहाँ पर यंग हैं, all those who are young, they are just busy in the sensual pleasures. They are in one another's arms. Birds are singing in the trees. And all those डाइंग जनरेशन्स किसको कहा है? जो भी चीज़, वॉट एवर इज़ बिगॉटन, बॉर्न एंड डाइज, एज इट इज़ सेड. बिगॉटन मीन्स जिसको फादर किया गया है, ठीक है. टू ब्रिंग फोर्थ, जो जन्म लेती है और मरती है. इन सब चीज़ों से ये सब क्या है? ये डाइंग जनरेशन्स हैं. चाहे वो सालमन है, मैकरल है. तो सेंशुअसनेस जो है, ये लाइफ डेथ का जो खेल है, जो नेचर का एक रियलिटी है, रियल जिसको आप कह सकते हैं एक ट्रुथ है, वो क्या है? बर्थ एंड डेथ दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं. तो ये फिश, फ्लैश और फाउल जो है, ये क्या है? ये वर्ड्स हैं जो इस पर एम्फसिस करते हैं दैट सेंशुअसनेस जो है इसका एक सर्कल है, ये पूरा हो जाता है. एंड ओल्ड मैन, दे आर जस्ट आउट ऑफ दीज sensual pleasures, so they cannot involve
in the acts of the young men. तो ये कहने की कोशिश कर रहा है पोएट कि जो यंग हैं वो इसी प्लेजर में या सेंसुअल म्यूज़िक में क्या है, वो उस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, उस थॉट को निगलेक्ट कर देते हैं जो हमेशा अनेज्ड रहता है, जिसको इंटेलेक्ट कहा जाता है या जिसको सोल की आवाज़, आत्मा की आवाज़ कहा जाता है. And these phrases, the salmon-falls, the mackerel-crowded seas, imply that the human lovers, the birds, the fish, do but copulate and spawn, and this is their whole being. यही उनकी पूरी दुनिया है. The country of the young is wholly given over to sensuality. They comment whatever is begotten, born and dies. Comment means to applause or to रिवॉर्ड. तो उस चीज़ को ही ये लोग क्या है, रिवॉर्ड समझते हैं. जो चीज़ें जितनी भी हैं बिगॉटन, और उनकी जो ये कमेंडेशंस हैं, जो इनकी जॉयज़ हैं, दे ऑल्सो लास्ट जस्ट लाइक द लाइफ एंड एज द मेटिंग सीजन लास्ट, जस्ट अ समर और जस्ट अ सीजन. So these concluding lines of the stanza cancel all possibilities of a return to such a country. Now he says, an old man is but a paltry thing, a tattered cord upon a stick, unless soul clap its hands and sing, and louder sing, for every tatter and its mortal dress. Nor is there singing school but studying monuments of its own magnificence. And therefore I have sailed the sea and come to the holy city of Byzantium. Now in the first stanza, as we have seen, young age की जो shortcomings हैं वो describe की है. That is why the reason is that the old man wants to leave that country. और अब वो क्या कह रहा है कि ओल्ड एज कोई सोल्यूशन नहीं है. उस सेंशुअलनेस से वो बाहर तो आ गया है अपनी एज की वजह से, बट दिस इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन. इट इज शोन इन दिस stanza, second stanza. And merely to be old is not the, you can say, solution for coming out of that privation which he have experienced in the first stanza. And he is just a paltry thing, like a tattered cord upon a stick. जैसे एक स्केयरक्रो बनाने के लिए पुराने कोट को डाल दिया जाता है, तो उस तरह से ही ये जो बॉडी है, जो फिज़िक है उसकी, वो ओल्ड हो गई है, उसमें वो जान नहीं रही है. तो उस चीज़ से कहा है. लेकिन जब सोल जो है, जिसको आत्मसंतुष्टि, आत्मज्ञान की बात करते हैं हम, तो सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो रही है. जो सोल क्लैप करती है अपने हैंड्स और सिंग्स एंड लाउडर थिंग्स, तो हर उस चीज़ के लिए जब हमारी सोल जो है, हमारी आत्मा जो है, जब वो सिंग करती है, गाना गाती है, यानी इट जस्ट अपलॉजेज द क्रिएशन ऑफ गॉड एंड इट्स ओन पावर एंड मैग्निफिसेंस. तो जो सोल की खुद की पावर और मैग्निफिसेंस जब उसको खुद पता लगती है सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू, देन इट सिंग्स. सो इट कैन बी लर्न, ही सेज दैट किसी स्कूल में जाकर वो शायद नहीं सीखा जा सकता ये चीज़. ये क्या है, ये एक्सपीरियंस से आती है और तभी उसको रियलाइज़ किया जा सकता है. सो हियर द पोएट इज़ फोर्स्ड बाय ओल्ड एज टू रिजेक्ट द लाइफ of sensual music and of begetting and bearing a world of procreation. And this world is continuously it dies, and unwilling to be an old scarecrow or a dying animal, he seeks to make his soul in its फाइनल फॉर्म, उस प्योर फॉर्म में लाने की बात कही जा रही है इस पोम में, कि जो सोल का प्योर अनलिमिटेड फॉर्म है उसको पहचानने की ज़रूरत है. इसीलिए जो है वो इतनी दूर बाइजेंटियम तक जाना चाहता है, क्योंकि बाइजेंटियम को वो कंपेयर करता है उसकी उस सेक्रेड सिटी जो है, जहाँ पर मैन जो है कल्चर और यूनिटी के साथ है. वहाँ पर वो चीज़ें आपस में एक यूनाइट होकर एक कंप्लीट फॉर्म बनाती हैं. वहाँ पर कुछ भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, नेचर, कल्चर और मैन.
तीनों यूनाइट हो जाते हैं। वो जगह जहाँ पर उसको वो सोलेस मिलती है वो जगह है बाइजेंटियम, जहाँ पर वो सेल कर कर जाना चाहता है। इसलिए उसने उस पुरानी जो कंट्री है जो यूथ के लिए ही शायद बनी है, ऐसा उसको फील होता है, उसको छोड़कर इतनी दूर आया है। तो कुछ पॉजिटिव ऐड करना चाहता है अपनी लाइफ में वो, जो उसकी सोल, his own soul can realize his own being and his own power and magnificence. So in this whole stanza, he just tells us how an old man is worthless and he doesn't want to be just a scarecrow. And the clapping of the soul is just an intimation and explanation of the spiritual exaltation which is realized by the old man. So next what he says, O sages standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of wall, come from the holy fire, perne in a gyre, and be the singing masters of my soul. Consume my heart away, sick with desire, and fasten to a dying animal. It knows not what it is, and gather me into the artifice of eternity. Here the poet is now appealing to the sages who are standing in the God's holy fire, who have thus been purged of the last remnants of sensuality. उस sensuality के जो traits हैं उससे ये sages बिल्कुल बाहर हैं और God की holy fire में एक figure की तरह represented हैं। तो वो ये कह रहा है कि उससे एक डिज़ायर अपनी कह रहा है कि जो गोल्ड मोज़ाइक वॉल्स में शो किए गए हैं उसमें उनको कह रहा है कि आप उस फायर से बाहर आओ, वहाँ से बाहर आओ और एक हॉक लाइक मूवमेंट की तरह उसके ऊपर टूट पड़ो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो उनको सिखाएं, सिंगिंग मास्टर्स ऑफ हिज सोल, टू बिकम द मास्टर्स, उसको सिखाएं कि वो प्योरिटी, वो जो उनको मिली है वो उसके हार्ट को कैसे मिल सकती है। मतलब जो हमारा स्पीकर है उसको उन होली सेजेस की जो स्ट्रेंथ है, जो प्योरिटी है हार्ट की, वो पोएट भी उनसे सीखना चाहता है। एक्चुअली ही वांट देम टू टीच हिम टू लिसन टू द स्पिरिचुअल म्यूजिक एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सेंसुअल म्यूजिक। दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सीखना चाहता है, जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने कहा था। सो द poet yet not been able to get rid of his sensual desires. He said, sick with desires, consume my heart away. तो जो मेरा हार्ट है उसको तुम सिखाओ। उन होली सेजेस को वो कह रहा है कि कैसे तुमने ये प्योरिटी जो हासिल की है इस लेवल तक आने के लिए, वो प्योरिटी आप मुझे भी सिखाओ कि मैं इस सेंसुअल प्लेजर से जो अभी भी अटैचमेंट थोड़ा बहुत रह गया है उसको मैं अपने से दूर कर सकूं, तो अपनी खुद की रियलिटी को समझ सकूं। So he says that only those sages can purge his heart of all impurities and give him the permanence which great objects of art possess. Great object of art, जितनी भी बड़ी बड़ी आर्ट की जो डिज़ाइंस हैं, जो इटर्नल आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई गई हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। एंड ही सेज एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल। डाइंग एनिमल यहाँ पर बॉडी को भी कहा है। आत्मा जो है वो उस बॉडी से बंधी हुई है जो कि फ्रजाइल हो गई है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, या फिर उसको आप ये कह सकते हो कि वो मरने वाली चीज़ है, उसका एंड होता है। बट सोल इज़ इटर्नल, इट नेवर डाइज। तो उस डाइंग एनिमल के साथ, उस बॉडी के साथ उस आत्मा को जो है जोड़ा गया है यहाँ पर। दे आर कंपेयरिंग द बॉडी एंड द सोल। सो हियर दिस बॉडी एंड सोल इज गिवन द डेफिनेट डिस्टिंक्शन है कि बॉडी जो है ये पेरिनियल है, वो पैरिश हो सकती है, पैरिशेबल है, बट सोल इज़ नॉट। एंड स्टिल व्हेन इट इज़ टाइड टू दिस डाइंग एनिमल, जब उस सोल को उसके साथ बांधा गया है, इट इज़ नॉट एबल टू नो व्हाट इट एग्जैक्टली इज़। सो ही सेज दैट ही रिक्वेस्ट द सेजेस टू जस्ट गैदर हिम इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी। उसे उस नॉलेज की ज़रूरत है जो उसे इटर्निटी की तरफ लेकर जाए। सो हियर इन द फोर्थ स्टैंजा ही सेज, वंस आउट ऑफ natural I shall never take
माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। मतलब वो कहना चाहता है कि एक बार इस मैं बॉडी से, उस डाइंग एनिमल से जिसकी बात की, उससे छुटकारा मुझे मिल जाए तो मैं कभी दोबारा उस बॉडीली फॉर्म या नेचुरल चीज़ से वो फॉर्म नहीं लूँगा जो डाइंग या बर्थ के एक चक्र से जुड़ी हुई है। मतलब डेथ एंड बर्थ से जुड़ी हुई है, उस फॉर्म में दोबारा वो आना नहीं चाहता है। बट सच अ फॉर्म एज ग्रीशियन गोल्डस्मिथ मेक ऑफ हैमर गोल्ड एंड गोल्ड enamelling to keep a drowsy emperor awake, or set up on a golden bough to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come. So he says that he will reject all physical incarnation because all living beings are subjected to mortality and death, and he would like to become something eternal and imperishable, जो कभी perish ना हो, कभी ख़त्म ना हो, एक तरह की इटर्नल चीज़ बना जाएगा। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया दैट ही वुड लाइक टू टेक द शेप ऑफ अ गोल्डन बर्ड, द काइंड ऑफ बर्ड विच ग्रीशियन गोल्डस्मिथ्स आर बिलीव टू हैव डिजाइंड फॉर द प्लेजर ऑफ एन एम्परर। किसी एम्परर के प्लेजर के लिए, उसको जगाए रखने के लिए ग्रीशियन गोल्डस्मिथ ने एक गोल्डन बर्ड बनाई थी। एंड एज अ गोल्डन बर्ड, एज अ वर्क ऑफ आर्ट, ही वुड बी बियॉन्ड डीके और डेथ। वो हमेशा के लिए इटर्नल हो जाएगा, उस डाइंग जनरेशन्स के फेर से वो निकल जाएगा। रियल बर्ड्स की तरह नहीं रहेगा जो कभी मर सकती है, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में था। बट ही विल बी अ पीस ऑफ आर्ट एंड इट विल बी इटर्नल। और उसको कहीं गोल्डन बॉक के ऊपर जो है बिठा दिया जाए उसको, वहाँ पर वो चाहता है कि जो बाइजेंटियम के लॉर्ड्स एंड लेडीज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए वो हमेशा गाता रहेगा। ही विल बी सिंगिंग एंड द ऑडियंस विल बी द लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम और द लॉर्ड्स ऑफ बाइजेंटियम। एंड हिज सॉन्ग्स when he becomes a golden bird will be that of spiritual ecstasy। उस एक्सटेसी के सॉन्ग्स, जैसे क्लैपिंग इट्स हैंड एंड सिंगिंग कहा था उसने प्रीवियस स्टैंजा में, तो उसकी बात करे तो वो स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा उन सॉन्ग्स के अंदर, और उसमें क्या पास्ट में हुआ था या अभी जो चल रहा है या कभी आने वाला है, उसके बारे में वो उन सबको बताना चाहेगा। तो ये कंटिन्यूटी को डिस्क्राइब करता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो इस बर्ड की तरह अनपेरिशेबल सब्जेक्ट बनना चाहता है, ये उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, दोबारा बर्थ एंड डेथ के सर्कल से निकलकर इटर्नल होना चाहता है। तो इसलिए ग्रीशियन गोल्डस्मिथ की इसमें उसने बात कही है। And if we look to the overall poem, the poem never moves away from its central directing symbols. The basic theme, the two music of the sensuousness, the sensual music and the spiritual music, दो opposite kind के music की बात की है। टोटली उसके आसपास ये जो पोम है घूमती है और अपने रीडर को भी ये डायरेक्ट करती है टू आइडेंटिफाई द रियलिटी ऑफ अ पर्सन। इस तरह से क्या है, जो रीडर है उसके अंदर सीरियसनेस और रियलिटी जो है, मोटिवेशन जो है वो क्रिएट होता है क्रिएटिव माइंड में, दैट व्हाट एग्जैक्टली अ बीइंग इज एंड बीइंग पेरिशेबल, हाउ ही और शी शुड एक्ट इन हिज लाइफ। दूसरा अपोजिंग सेट हमें मिलता है कि एक मैन है उस यंग की कंट्री में जो ओल्ड मैन है, लेकिन देयर आर यंग मैन इन बाइजेंटियम ऑल्सो, बट बोथ हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स। दोनों का जो रियलाइजेशन का थॉट है, एक जगह वो सेजेस हैं एंड दे हैव रियलाइज द मेन पर्पस ऑफ देयर लाइफ, एंड उनकी सोल क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन के जो लेवल है उस पर बाइजेंटियम के जो ओल्ड मैन हैं वो पहुंच चुके हैं। लेकिन वहीं पर जो यूथ का जो हमारा मॉडर्न सेंसुअल वर्ल्ड है, वहाँ पर उस ओल्ड मैन की कोई वैल्यू नहीं है। तो काफ़ी सी चीज़ों को क्या है पोएट ने यहाँ पर कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके लाइफ का फाइनल जो फॉर्म है उसके बारे में सोचने पर मजबूर किया है। इस पोम में शॉर्ट है बट स्वीट पोम है, जिसे पढ़ने के बाद हम इस चीज़ को सोचने पर मजबूर होते हैं कि एक्चुअली जो आज है वो कल होगा ही नहीं, तो हम किस चीज़ के बारे में, किसके पीछे इस तरह से भाग रहे हैं। तो वो समय जो है अपने आप को, सोल को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हमें देना चाहिए, जो हम अननेसेसरी चीज़ों में बिता देते हैं। आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोम
and I have tried to explain to you every note in this poem so you can understand the poem well. Thank you for watching.